people are eagerly waiting. Our guest speaker today is Professor Hari Narke, and a name that doesn't need much introduction in Indian Ambedkarite Buddhist or things like that. But I would like to read a little bit about him just to see how much why he is the best person who is going to talk on the topic that he chose today. So Professor Narke has delivered 10,000 plus lectures across country and abroad, especially lectures at London, Birmingham, Bedford, Manchester, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Lumbini, Kathmandu. These are kind of noteworthy places. And he has done crucial research work in London as well. He has delivered lectures in 29 states across India and has been honored with 100 plus state and national awards. The name that we know so much, Professor Narke has been a member secretary for Mahatma Phule Book Publication Committee, that is a government of Maharashtra committee. He was also a chairperson for Mahatma Phule Chair at Savitribai Phule Pune University, vice president of Bhandarkar Oriental Research Institute in Pune, and he is a member of State Backward Commission, Government of Maharashtra, which is equivalent to a status of a Secretary of State Government. He is a coordinator for Abhijat Marathi Bhasha Samiti, which means Classical Marathi Language Committee, part of the Government of Maharashtra's efforts. And former member for Advisory Body, Planning Commission, Government of India, Marathi Language Advisory Committee, Sahitya Sanskritik Mandal, Vishwa Kosh Nirmiti Mandal, Workers Welfare Board, Rangabhumi Parini Krishna Mandal, Government of Maharashtra, Textbook Board, and Bal Bharti Pune. He has done his BA with first rank and MA from University of Pune, gold medal along with 25 prizes. He's a very known blogger. There are almost like 3 lakh followers on his blogs, written multiple books, 40 plus books in Marathi, Hindi, and English to his credit. Edited Mahatma Phule Complete Works and Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches, volume 17 to 22, have been edited with Hari Narke sir being the editor for the committee. Also translated Hindi and English translation for Mahatma Phule's writings, presented multiple papers to 80 plus universities, multiple 2,000 plus articles published in renowned papers across, and also participated in more than 500 plus programs on Doordarshan and various TV channels. He is kind of following in Babasaheb's footsteps, holds a personal library of 25,000 plus rare books. Born on June 1st, 1963, near Pune in Padegaon, Dhamdhere, Taluka Shirur. Professor Narke sir lives with his wife, Sangeeta ma'am, who is a teacher, and a daughter, Pramiti, who is an actor. So now you would see that he is the best person to teach us on Mahatma Phule and Dr. Ambedkar for some newer insights. We are going to have this series with Professor Narke in 2 parts. So today we will be conducting one. And our next part, we will have it either next week or the week after. We are still kind of working to get that date fixed with Professor Narke. But with his introduction, you would know now that he is the best person to tell us that if there are newer insights for Mahatma Phule and Dr. Ambedkar, that's going to come from him. And so I welcome with that Professor Narke. Namo Buddhaya Jai Bhim, sir. Please welcome to the session.
and the floor is all yours, sir. Jai Bhim to everybody. Friends, Ambedkar Association of North America, a ऑनलाइन संडे बुद्ध विहारा प्रोग्राम में मैं हरि नरके आप सबको जय भीम करता हूं। मुझे आज बड़ी खुशी है कि पंकज मेश्राम जी, डॉक्टर शिलवंश थेरो बंते जी, विवेक जी, क्रांति जी, माय फ्रेंड वैशाली गायधनी एंड संजय गायधनी, आप सभी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। शायद मेरे वीडियो में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? सर, आर यू? यस सर, यस सर। हम आपको सॉरी फॉर टेक्निकल एरर इन वीडियो। आई विल कंटिन्यू। Yes, sir. Yeah, please continue, sir. We are able to hear you. Okay, sir. Please go ahead. फ्रेंड्स, मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड महात्मा फुले जी के बारे में जो नया रिसर्च चल रहा है, उसमें काम करने का मौका मुझे मिल रहा है एंड उसमें से कुछ बातें शायद मैं आज आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिराव फुले जी का महापरिनिर्वाण हुआ था और उसके करीब 4-4.5 महीने के बाद भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था। तो हालांकि उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर के साथ महात्मा फुले जी को अपना गुरु मानते थे और कई बार उन्होंने इसका जिक्र किया है, किताबों में लिखा है, उनके स्पीचेस में है, उनके लेटर्स में है। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर महात्मा फुले जी का प्रभाव है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। और आज आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के घर के लोगों का महात्मा फुले और सावित्रीबाई से सीधा संपर्क था। सूबेदार मेजर रामजी सकपाल जब महू में आर्मी में काम कर रहे थे, तब आर्मी ऑफिसर्स को लगा कि इनको टीचर्स की क्वालिटीज बहुत अच्छी है, तो उनको टीचर्स ट्रेनिंग के लिए पुणे भेजा गया। When he attended his classes, teachers training classes in Pune, सूबेदार मेजर रामजी सकपाल met महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, और जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, उनमें गहरी दोस्ती हो गई और 1.5 साल तक सूबेदार मेजर रामजी सकपाल, फादर ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यूज्ड टू मीट सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव इन पुणे, और उनकी ये जो दोस्ती रही वो आगे भी चलती रही। और जब वो महू गए, वहां पर पहले टीचर, बाद में ही वॉज हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। तो जब वो काम कर रहे थे तो उनका संपर्क महात्मा फुले और सावित्रीबाई से बना हुआ था। और ये जो रेफरेंसेस मिले हैं, इसकी बड़ी खुशी मुझे इसलिए है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी महात्मा फुले और सावित्रीबाई के दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे। और दूसरी बात, बाबा साहब, जब हम सब जानते हैं, वी ऑल नो अबाउट इट, कि जब वो 1907 में मैट्रिक की एग्जामिनेशन पास हो गए तो उनका बड़ा सम्मान मुंबई में किया गया और सत्यशोधक बोले, सीताराम केशव बोले जी के हाथों से बाबा साहब का सम्मान किया गया, भीमराव का सम्मान किया गया और उनको बुद्ध चरित्र भेंट में दिया गया। हम ये भी जानते हैं कि बुद्ध चरित्र के जो लेखक है वो थे कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर, जो कि कोकण के कुंबी समाज के लेखक थे और महात्मा फुले जी के बहुत करीबी दोस्त थे। महात्मा फुले जी जब कभी भी मुंबई जाया करते थे तो केळुस्कर जी के घर में रहते थे और केळुस्कर जी के घर में ही उन्होंने कई भाषण सत्यशोधक समाज पर दिए थे, जिसका जिक्र भास्करराव जाधव से लेकर कई सत्यशोधकों ने अपनी स्मृतियों में किया है।
मेमोइर्स में किया है। और यही केळुस्कर गुरु जी जो बुद्ध का चरित्र लिखते हैं, वो भीमराव को मैट्रिक के एग्जाम में सफल होने के उपलक्ष्य में बधाई के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा के प्रीफेस में, जो कि दुर्भाग्यवश पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ में प्रकाशित नहीं किया गया, लेकिन वो प्रीफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बाद में समता संघ, समता सैनिक दल द्वारा प्रकाशित मराठी अनुवाद में अभी प्रकाशित किया गया है, जिसमें बाबा साहब ने 3 बातें कही है। बाबा साहब ने कहा है कि उस किताब को पढ़कर मैट्रिक की उस एज में, एट द एज ऑफ 15-16 ईयर्स, मैं बहुत प्रभावित रहा, बुद्ध से मुझे प्रेरणा मिली, और उस ऑटोबायोग्राफी से, उस बायोग्राफी से मैंने ऊर्जा ली और बुद्ध की तरफ जाने की कोशिश की। बाबा साहब कहते हैं कि पूरा 48 साल तक का जर्नी मैंने उस किताब के साथ किया है, बुद्ध के साथ किया है। तो हम समझ सकते हैं कि बुद्ध का आगमन ही बाबा साहब के जीवन में होता है। वो एक केळुस्कर गुरु जी, जो कि सत्यशोधक है, महात्मा फुले जी के बहुत करीबी दोस्त है, और जिन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ से बाबा साहब को मिलाया था, क्योंकि बाबा साहब के पिताजी पेंशनर थे और उनकी इच्छा थी अपने बेटे को पढ़ाने की, और बेटा भी पढ़ना चाहता था। लेकिन एल्फिंस्टन कॉलेज में बाबा साहब जब पढ़ रहे थे तो ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस तैयार हो गई थी कि आगे पढ़ना मुश्किल था। तब केळुस्कर गुरु जी भीमराव को लेकर सयाजीराव गायकवाड़ साहब के पास गए, और गायकवाड़ साहब ने उन्हें फेलोशिप, स्कॉलरशिप अवार्ड की, और उसके कारण बाबा साहब कोलंबिया जाकर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में पढ़ पाए, एमए एंड पीएचडी। और हम सब ये जानते हैं कि जिसको 7 साल का समय लगता है, 7 ईयर्स, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2-2.5 साल में उसे पूरा किया था, एमए इन इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स। और फिर he shifted to London and then he joined London School of Economics for MSc Economics and Gray's Inn for Bar at Law Barrister। और आगे हम जानते हैं कि स्कॉलरशिप खत्म होने के बाद वो वापस आए बीच में ही और बड़ौदा ज्वाइन किया, लेकिन बड़ौदा में उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए वो छोड़कर वो आए। तो अब ये रिकॉर्ड मिला है कि बाबा साहब जब मुंबई में आए तो उन्होंने शेयर मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसकी सलाह मशवरा करने के लिए कंपनी खोली, और फोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो कंपनी चलाई गई वो बहुत ही सक्सेसफुल रही, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर फर्स्ट इंडियन थे जो इकोनॉमिक्स में अमेरिका से पीएचडी करके आए थे, और लंदन में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी उन्होंने किया था और डॉक्टर ऑफ साइंस पढ़ना चाहते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत सक्सेसफुल एडवाइजर, सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे शेयर मार्केट के लिए। आगे उनको सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिली, और हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की इस नौकरी में काम करते करते ही डॉक्टर अंबेडकर ने साउथ बरो कमीशन, फिर मानगांव कॉन्फ्रेंस, जहां शाहू महाराज ने ये कहा कि भीमराव पूरे देश के नेता बनेंगे, और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर अपना जॉब सिडनेम कॉलेज का रिजाइन करके फिर लंदन ज्वाइन करते हैं, और लंदन में बार एट लॉ पूरा करते हैं, एमएससी करके डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए प्रॉब्लम प्रूफी अपना थीसिस पूरा करते हैं, और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर भारत में आकर आगे काम करते हैं। मेरा पॉइंट यह है कि महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर, इन दोनों में हमने ये देखा है कि लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो कई ऐसी जगह है कि जहां पर उनके विचार एक दूसरे से मेल खाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट यह है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा फूले पर फिल्म बनाई गई आचार्य यात्रे द्वारा, उस फिल्म का, उसकी शुरुआत, उसका फर्स्ट कैप
बाबा साहब के हाथों से दिया गया। फिल्म पूरी होने के बाद, जो कि अत्रे जी ने बाबा साहब के साथ डिस्कशन करते, बाबा साहब का मार्गदर्शन गाइडेंस लेकर पूरी की थी, और उसको जब उन्होंने बाबा साहब को दिखाया तो बाबा साहब का लेटर अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है और मैं खुश हूँ कि अत्रे जी ने एक अच्छा काम किया है। आगे चलकर इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। दूसरी बात, महात्मा फुले जी का स्टैचू पूना में बिठाना चाहिए, इस तरह का केशवराव जेठे ने और जवलकर ने जो मूवमेंट चलाया था, उसके खिलाफ पूना में वातावरण तैयार हुआ और सनातनियों ने काफी जमकर उसका विरोध किया। 1925 से लेके 1969 तक ये लड़ाई चली। एक स्टैचू बिठाने के लिए 44 साल तक संघर्ष पूना में चलता रहा। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले का भारतवर्ष में पहला स्टैचू नासिक में बनाया गया और उसका उद्घाटन बाबा साहब अम्बेडकर जी के हाथों से हुआ। बाबा साहब ने उस स्टैचू के उद्घाटन के समय जो भाषण किया है, वहां उन्होंने महात्मा फुले जी से उनका क्या रिश्ता है, क्यों महात्मा फुले से उन्हें इंस्पिरेशन मिली है और वो फुले जी पर काम करना चाहते हैं, फुले जी के साथ जाना चाहते हैं, इसके बारे में काफी बातें कही है, जिसका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा। लेकिन एक और मुद्दा है जो कि 1946 में 1946 डॉक्टर अम्बेडकर रोट ए बुक हु वेर द शूद्रास, एंड एज वी ऑल आर अवेयर दैट बुक वाज डिवोटेड टू महात्मा ज्योतिराव फुले, द ग्रेटेस्ट शूद्रा ऑफ मॉडर्न इंडिया। बाबा साहब कहते हैं कि जिन्होंने सोशल रेवोल्यूशन के बारे में, सामाजिक परिवर्तन के बारे में लोगों को आगाह किया, अवेयरनेस पैदा की, एजुकेट किया, ऑर्गेनाइज किया, और डॉक्टर अम्बेडकर ये किताब महात्मा ज्योतिराव फुले को अर्पण करते हैं। मुझे लगता है कि और एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है जहां पर अभी लेटर्स अवेलेबल हुए हैं। बाबा साहब ने पूना में एक भाषण दिया था जो बहुत फेमस है, रानड़े गांधी एंड जीना। बाबा साहब के, as we all are aware that 22 volumes are published by government of Maharashtra, and as Pankaj ji told you, before me Vasant Moon Sahab was editor of Writing and Speeches volume. He published first to 16 volume. I joined him, and after he passed away, I published volume 17, part 1 to 3, volume 18, part 1 to 3, volume 19, 20, 21, 22nd, Marathi and English. और मुझे बड़ी खुशी है कि एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले हरि नरके को बाबा साहब जैसे महान हिमालयन टॉरिंग पर्सनालिटी के लिटरेचर के प्रकाशन के काम में एक अवसर मिला, मौका मिला, और इस अपॉर्चुनिटी के कारण बाबा साहब का साहित्य, उनका लिटरेचर, उनके राइटिंग एंड स्पीचेस बहुत बारीकी से पढ़ने का मुझे अवसर मिला। आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर था। आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को ये वॉल्यूम प्रकाशन के बाद मिले हैं, लेकिन उसके प्रकाशन से पहले कम से कम 5 बार पढ़ने का मौका एज ए पार्ट ऑफ द जॉब एंड प्लेजर मुझे मिला है। और तब बाबा साहब का एक पत्र मिला जिसमें बाबा साहब ने लिखा था, उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे जो कि औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और उनको लिखा हुआ बाबा साहब का ये पत्र है कि रानड़े गांधी एंड जीना स्पीच में उन्होंने महात्मा फुले जी के बारे में भी लिखा था, और महात्मा फुले जी के बारे में जो बातें उन्होंने लिखी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे प्रिंसिपल सर ने बाबा साहब को लिखा है और कहा है कि ये इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और मुझे लगता है कि इसको आपको सेपरेटली प्रकाशित करना चाहिए। और बाबा साहब ने भी फिर लिखा प्रिंसिपल साहब को कि आप सही हो, मुझे लगता है कि रानड़े गांधी एंड जीना इस स्पीच में मैंने महात्मा फुले जी के बारे में जो लिखा है मैं अलग से इसे प्रकाशित करूंगा, सेपरेटली आई विल पब्लिश दिस बुक। और बाबा साहब
महात्मा फुले पर जो उन्होंने लिखा था उसे पब्लिश करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली बाबा साहब उन दिनों ये प्रकाशित नहीं कर पाए, और जो उनका लिटरेचर, राइटिंग एंड स्पीचेस का मटेरियल जो बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सौंपा गया, उसमें बाबा साहब का ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला। लेकिन मैं आज भी कोशिश कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ना वहां कहीं ना कहीं वो बाबा साहब का जो महात्मा फुले जी पर लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच था, जो कि किताब में प्रकाशित करने वाले थे बाबा साहब, वो मिलेगा। और उसमें महात्मा फुले जी पर बाबा साहब के कई और विचार हम पढ़ पाएंगे। मैं ये कह रहा था कि बाबा साहब के 22 वॉल्यूम आप में से कई लोगों ने पढ़े होंगे। जब कभी भी समय मिलेगा हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन एज पर माई नॉलेज एंड आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू एटलीस्ट 4 of them we must read. As per my knowledge and belief, Annihilation of Caste is the masterpiece of Dr. Ambedkar's writing. हम सब जानते हैं स्पीच प्रिपेयर्ड बट नॉट डिलीवर्ड, जो कि लाहौर में जात पात तोड़क मंडल के सामने बाबा साहब पेश करने वाले थे। कोई मतभेद होने के कारण वो प्रोग्राम नहीं हुआ, भाषण नहीं हुआ, डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब ने लिखा था और उसे पब्लिश किया गया, जो कि बाबा साहब का मास्टरपीस है ऐसे मैं मानता हूं। और हम सबको एटलीस्ट मास्टरपीस नंबर 1 इसको पढ़ना ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम 12 में हमने बाबा साहब की ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित की है, नेम इज वेटिंग फॉर वीजा। और हम सब लोगों को पता है कि आप लोग अमेरिका में हो, तो नॉर्थ अमेरिका के इस ग्रुप को तो पता है कि हम जब विदेश जाते हैं तो वीजा की जरूरत होती है। लेकिन बाबा साहब ने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम वेटिंग फॉर वीजा जानबूझकर रखा है, क्योंकि भारत में ही हम लोग आउटसाइडर है और इसलिए हमें वीजा की जरूरत है। और वेटिंग फॉर वीजा इज द मास्टरपीस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मास्टरपीस ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, विच इज नाउ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और मुझे लगता है कि इसे भी हमको पढ़ना चाहिए और हमारे किड्स को, हमारे बच्चों को इसको पढ़ाकर सुनाना चाहिए। अभी आपने जो यहाँ स्टोरी टेलिंग का सेशन रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम हैप्पी फॉर दिस सेशन और मैं सिफारिश करूंगा, आई विल रिकमेंड यू पीपल, कभी अगर आपको ठीक लगा तो आपको वेटिंग फॉर वीजा के बाबा साहब के ऑटोबायोग्राफी से कुछ पन्ने बच्चों को पढ़ाकर इस सेशन में उनके सामने रखने चाहिए। थर्ड वन इज ऑफ कोर्स डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण रानड़े गांधी एंड जीना, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच बुक रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ वन जो कि अभी तक जिस पे ज्यादा बहस नहीं हुई है, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ वॉल्यूम नंबर 1 राइटिंग एंड स्पीचेस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम 1 में ये है, वो है स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। हमारा भारत किसानों का देश है, ऐसा हम कहते हैं। आज भी मोर देन 50% पीपल अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए खेती पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। बाबा साहब ने 100 साल पहले ये किताब लिखी है। दुर्भाग्य से लोगों को ये बताया नहीं जाता है कि बाबा साहब ने किसानों के बारे में किताब लिखी थी, और वो 1918 में 1918 he wrote a book about agriculture, about farmers, and important thing is that that book was published in Indian Economic Survey Journal in 1919, and Dr. Ambedkar separately published this book in 1920. 100 साल गुजरने के बाद भी दुर्भाग्य से बाबा साहब भारत के किसानों के बारे में क्या लिखते हैं इसका जिक्र नहीं किया जाता है। और मैं 2 सत्रों में आपके सामने आने वाला हूं, तो मेरी ये कोशिश रहेगी इन नेक्स्ट सेशन बाबा साहब के और कई न्यूअर इंसाइट्स के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। देखिए, ये इस किताब का फर्स्ट सेंटेंस ही बाबा साहब का कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस है।
वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल टुडे, 100 साल पहले बाबा साहब लिखते हैं, इंडस्ट्री का स्टेटस एग्रीकल्चर को नहीं मिला है। और आप भी आज भी आप जानते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन से लेकर दिल्ली में जो किसान साल 1.5 साल तक आंदोलन कर रहे थे, उन सब की मांग थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ, एमएसपी के साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेटस, इंडस्ट्रियल पैकेज हमें मिलना चाहिए, जो कि बाबा साहब ने 1918-1920 में लिखा था। तो बाकी बातें इसके बारे में हम बाद में करेंगे। नाउ आई विल go to Mahatma Phule and Savitribai Phule with your permission. Friends, as we are aware that Mahatma Phule and Savitribai Phule started first school for girls and also for Bahujans. But they were not only education providers, they were the educationists of India. And in that point, I will give you some very important evidences from archives. I'll start from Mama Parmanand's letter. Mama Parmanand was senior officer in Sachivalaya, जिसको आजकल हम मंत्रालय कहते हैं. In British Secretariat, Mama Parmanand was working as a senior officer. He wrote Sayajrao Gaikwad about Savitribai Phule. I quote, "More than Jyotirao, his wife Savitribai deserves praise. No matter how much we praise her, it would not be enough. How can one describe her stature? She cooperated with her husband completely and along with him faced all the trials and tribulations that came their way. It is difficult to find such a sacrificing woman, even among the highly educated women from upper caste. The couple spent their entire lifetime working for people." दोस्तों, ये महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में मामा परमानंद जी ने सयाजीराव महाराज को जो 31 जुलाई 1990 को खत लिखा है, वो अभी अवेलेबल हो गया है. उसमें से मैंने ये आपके सामने कोट करके रखा, इसलिए कि सावित्रीबाई और ज्योतिराव के बारे में काफी बातें तो हम जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि वो किस तरह से काम कर रहे थे और उनके एविडेंसेस, आर्काइवल मटेरियल क्या है. देखिए, द पूना ऑब्जर्वर एंड डेक्कन वीकली रिपोर्टर was a journal published from Pune. उस जर्नल में 1848 में 1848 journal published a news about Jyotirao Phule and Savitribai Phule, about their school for girls and school for untouchables, शूद्र and अतिशूद्र. रिपोर्ट में लिखा गया है, न्यूज जर्नल लिखते हैं, "This work is beginning of new epoch in the history of Hindu culture of India. This is a new start, new epoch for India." भारत के नए संस्कृति का आगमन, नई शुरुआत महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई के इस काम से हो रही है. ऐसे पूना ऑब्जर्वर एंड डेक्कन वीकली रिपोर्टर जैसे अखबार में उन्होंने जब काम शुरू किया था, तब लिखा है. ज्योतिराव फुले जी को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पूछा गया कि आपने ये काम क्यों शुरू किया, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दिस वर्क, while clarifying his reasons for doing so, Jyotirao says, "Ignorance, caste discrimination, and discrimination based on language are the bane of this country. When everyone is sad, the question often arises of whom to help.
But instead of being paralyzed by this passion into inaction, it is better to help those for whom the suffering is most. The Mahas and Mangs have to suffer inevitably due to caste discrimination. They can only overcome this suffering through knowledge. So I first started work from them, having convinced himself that there was no greater good for the country than educating the Mahas, Mangs, and others. Jyotirao got to work. Instead of working for a good cause alone, he established a mandali, that is institution, so that people who shared his vision could come together and work. A lot of work the country became possible because of institutional network that came up the last century. Institutionalization proved to the foundation of modern India, and that's why Mahatma Phule and Savitribai Phule are the makers of modern India. Jyotirao and Savitribai started two institutions, namely native female schools in Pune for girls and the Society for Promoting the Education of Mahas, Mangs, and others. They built a network of 18 schools, 18 schools in Pune region through these two institutions. ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने सिर्फ संस्थाओं का निर्माण ही नहीं किया, तो ये काम करने के पीछे उनकी सोच क्या थी उसके बारे में 15 सितंबर 1853 को ज्ञानोदया द मराठी डेली पब्लिश फ्रॉम अहमदनगर, Jyotirao gave his interview to Jnanoday. I quote, "It did occur to me that the improvement that comes about a child due to mother is very important and good. So those who are concerned with the happiness and welfare of the country should definitely pay attention to the condition of women and make every effort to impart knowledge to them if they want the country to progress." With this thought, I started a school for girls first. But my caste brothers and Sanatani people did not like that I was educating girls, and my own father threw us out of the house. Nobody was ready to give space for the school, nor did we have money to build it. People were not willing to send their children to school, but my friend Lahuji Vastad Salve, Rag Raut Mang, and Ranma Mahar convinced their caste brothers about the benefits of the getting educated. This historic work was started by Jyotirao when he was just 21 years old, while his wife, who supported him in every way, was merely 18 years old. Unquote. Friends, दो संस्थाओं का निर्माण करके जो काम ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने शुरू किया था, उसका 18 स्कूल्स का आउटकम जो है उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले I want to give some evidences from Hunter Education Commission. Mr. Hunter from London came to India, and on 19th October 1882, he met Mahatma Jotiba Phule and Savitribai Phule. They submitted their written memorandum to Mr. Hunter. It is published in Hunter Commission report. I quote, "There was no school for girls that could be called indigenous at the time here. So I was inspired to set up such a school. My wife and I worked in that school for several years." ज्योतिराव फुले जी ने जो काम किया
उस काम में उनके साथ जो साथी थे, जितने भी उनके दोस्त थे, उनके बारे में हिस्टोरियंस ने, खास करके अपर कास्ट फ्रेंड्स जो थे उनके, ब्राह्मण फ्रेंड्स जो थे उनके बारे में तो लिखा है, लेकिन I got some important documents from archival material in contemporary newspapers of that time, and reports from government officials, and also Bombay Education Report says often this couple did not even have the time to eat food. History has taken note of the contribution of his Brahmin colleagues to Jyotirao's movement, but the contribution of his Dalit colleagues has often been neglected. Actually, the work of those from so-called untouchables caste who had been denied education for thousands of years should be considered especially revolutionary. And that's why from the records I got the names Lahuji Osat Salve, Ranba Mahar, Duraji Appaji Chambar, Ganu Shivaji Mang, Fatima Sheikh, उस्मान शेख, ज्योतिराव इनके बारे में लिखते हुए कहते हैं कि सावित्री ने और मैंने जो काम शुरू किया था उसमें इन सभी का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही वैल्यूएबल था. इन हिज वर्ड्स ही सेज दे आर द मेकर्स ऑफ द नॉलेज. फ्रेंड्स, ज्योतिराव और सावित्रीबाई सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइडर नहीं थे. स्कूल का निर्माण करना सिर्फ उनका काम नहीं था. उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में मुझे लगता है कि हमको बात करनी चाहिए. When Hunter came to Pune, every educationist from upper caste met Hunter and submitted their memorandums. वो सब कह रहे थे कि filtration theory is the basic theory of education. मीन्स आप ऊपर के लोगों को एजुकेशन दे दो, फिल्टर होते होते नीचे आ जाएगा. ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई was only two people from India. They said no filtration, education from below. And there were only two people, educationists from India, जिन्होंने कहा था education from below. ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू करना होगा. After 50 years, this theory was in history by Gramsci. Gramsci ने कहा था हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, लेकिन 50 साल बाद की बात है. महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई 1882 में 1882 में हंटर साहब को लिखित मेमोरेंडम में कह रहे थे एजुकेशन फ्रॉम बिलो. नॉट ओनली दैट, the second important point is this: they demanded education must be free, education must be compulsory, and education must be universal. My dear friends, as per my knowledge and research, Mahatma Phule and Savitribai were not first Indians, but first Asians. पूरे एशिया में एजुकेशन कंपलसरी, फ्री एंड यूनिवर्सल होना चाहिए, ये मांग करने वाले पहले भारतीय अगर कोई है, पहले एशियन कोई है, तो महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले है. और उन्होंने अपने 18 स्कूलों में, जो कि दलित पिछड़ों के लिए, लड़कियों के लिए, अलग अलग समाज के महिलाओं के लिए उन्होंने चलाई थी, उनमें उन्होंने जो करिकुलम बनाया था उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि मुझे लगता है उनका एजुकेशनल, उनका काम जो है उसके बारे में बात करने से पहले हमको इसको पढ़ना चाहिए. ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई submitted their report to government of Bombay province, then British India. They said industrial department and agricultural department should be attached to the schools
in which children would learn useful trades and crafts and be able on leaving school to maintain themselves comfortably and independently. Education from the age of 6 must be compulsory of industrial departments and agricultural departments. So, knowledge with skills, knowledge with artisans, art, science. मुझे लगता है कि आज भी हमारे देश में, as you all are aware, that Maharashtra is ahead in the education in India. वैसे तो केरल नंबर 1 है, लेकिन केरल इज अ वेरी स्मॉल स्टेट. बड़े राज्य जो है उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है. लेकिन आज भी एट द फर्स्ट स्टैंडर्ड I have worked with Bal Bharati, that is government of Maharashtra's institution. We make curriculum and books for standard 1st to standard 12. So, as per my knowledge, 1 crore total students get entered in standard 1st, grade 1st. But at the matriculation at 10th grade, standard 10th, only 17 lakhs जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया, तो 83 lakhs as on today is a dropout. Who are they? महात्मा फूले और ज्योतिराव के साथ सावित्रीबाई ने ड्रॉपआउट की समस्या क्यों है, इसके बारे में जो रिसर्च किया था उसके पेपर्स अभी अवेलेबल है. और उन्होंने इस पे काम करते हुए कहा था, कास्ट सिस्टम, क्लास, गरीब अमीर, जेंडर बायस आर द रीजंस फॉर द ड्रॉप आउट. सेकेंडली, बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता है, कपड़े नहीं है, बुक्स नहीं है. सो मिड डे मील एंड स्कॉलरशिप्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एवरी पोर स्टूडेंट. उन्होंने सैलरी एंड वेजेस कहा है, और बच्चों को स्कॉलरशिप्स के रूप में सैलरी एंड वेजेस देने की व्यवस्था होनी चाहिए. यहां से लेकर करिकुलम, जो कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन के साथ बच्चों को खास भारतीय नॉलेज देने वाला एजुकेशन होना चाहिए. हालांकि एजुकेशनिस्ट महात्मा फूले एंड सावित्रीबाई फूले, इस पे काफी लंबी बहस हो सकती है. I can give some time for this aspect, but second more point I want to raise, that as per our knowledge and belief, Savitribai was follower of Mahatma Phule, but I got 4 evidences. Jyotirao himself wrote about Savitribai, and he said, she is my wife, but she is not only my wife, she is my friend, philosopher and guide for 4 important moments. 4 ऐसे आंदोलन जिसमें सावित्रीबाई नेता थी. She was my leader. ये खुद ज्योतिराव ने लिखा है. इसलिए हमारी महिला भगिनियों को, सिस्टर्स को मैं बताना चाहूंगा कि सावित्रीबाई सिर्फ फॉलोअर नहीं थी. सावित्रीबाई ज्योतिराव के साथ काम करते करते 4 आंदोलनों में उनकी लीडर भी थी, और ऐसा खुद ज्योतिराव ने लिखा है. पहला एविडेंस है कि जब सावित्रीबाई ने लड़कियों का स्कूल शुरू किया, तो माँ और पिताजी को एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पता नहीं था बहुजन समाज में, दलित समाज में. इसलिए उनको एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताने के लिए महिलाओं का स्कूल भी सावित्रीबाई ने शुरू किया, और अपने घर में नाइट स्कूल फॉर लेडीज सावित्रीबाई ने शुरू किया 1854 में. इट वाज एडल्ट मिशन फॉर एजुकेशन. फर्स्ट टाइम इन इंडिया सावित्रीबाई स्टार्टेड दिस मिशन, adult education mission, in 1854. Then Jyotirao also started this mission for male. Second important evidence, जब
सत्यशोधक समाज के द्वारा सत्यशोधक शादियां, सत्यशोधक विवाह पद्धति का निर्माण किया गया, तब पहली शादी जब 1873 में 1873 में 25 दिसंबर को पूना में की गई, तो उसकी लीडरशिप सावित्रीबाई ने की थी। उसका खर्चा भी सावित्रीबाई ने उठाया था, ऐसा खुद ज्योतिराव ने लिखा है। और इस शादी की सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह थी, ब्राह्मीण प्रीस्ट को नहीं बुलाया जाएगा। हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दे आर इनफ। किसी बाहर के आदमी को हम नहीं बुलाएंगे, उसको कोई दक्षिणा नहीं देंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस शादी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कम खर्चे में शादी होगी, मैरिज कम खर्चे में होगा, लेकिन 20% ऑफ द बजट मस्ट बी डिवोटेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अभी बनते जी दान पारमिता के बारे में हमें बता रहे थे। दोस्तों, पे बैक टू सोसाइटी की बात करते हुए सावित्रीबाई ज्योतिराव हर शादी में 20% ऑफ द बजट, शादी का जो होगा, दैट मस्ट बी डोनेटेड टू द स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दिस इज द रूल ऑफ सत्यशोधक मैरिज। थर्ड वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल in every marriage. That marriage may be from Maratha, Mali, Dangar, any caste, but the girl from Mahar family वो मंडप में आएगी और वो जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनका सम्मान करेगी मंडप में, और उसके बाद ही शादी परफॉर्म हो सकेगी। तो ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने जो नियम बनाए हैं उसको अगर हम देखते हैं तो इसके द्वारा भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम की दिशा में ये लोग कैसे जा रहे थे, इसके बारे में एविडेंसेस मिलते हैं। हर शादी में महार गर्ल आके जब शुरुआत करेगी, सी विल बी द लीडर ऑफ द मैरिज फंक्शन, एंड देन ओनली मराठा, माली, कुंभी, धनगर, एवरी कास्ट, किसी की भी शादी हो वो आगे परफॉर्म करेंगे। फोर्थ रूल इज ऑल्सो रिवोल्यूशनरी। मंगलाष्टक जो है प्रार्थनाएं, गीत है और लड़की और लड़के के द्वारा लिए गए वचन हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण वचन यह है कि लड़की अपने पति से पूछती है कि हम शादी करने जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को भारत में अधिकार नहीं दिए जाते हैं, आप क्या सोचते हो? इन मराठी वो लिखते हैं, सावित्रीबाई ज्योतिराव लिखते हैं मंगलाष्टक में, स्थापाया अधिकार बायकांचे सदा मी झटतसे अर्पाया न भी किमपी ही सर्वस्व माझे कदा। बायकांचे अधिकार, मराठी भाषा में बायकांचे अधिकार शब्द प्रयोग ही पहली बार अगर आया है तो ज्योतिराव और सावित्रीबाई के कारण आया है 1873 में सत्यशोधक विवाह विधि में। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ वुमेन, इसलिए आगे चलकर ताराबाई शिंदे, स्टूडेंट फ्रॉम सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव स्कूल, शी रोट ए बुक ऑन फीमेल रेवोल्यूशन, फीमेल empowerment, gender equality, that is comparison between men and women. Nowadays it is very famous book for Western also. In India also we people got to know about this book, but Tarabai Shinde was student of Savitribai and Jyotirao. Second one, Tanubai Birje, she was student of Savitribai and Jyotirao. She was first Indian female editor 1906 she got editorship of दीनम बंधु। 7 साल तक उन्होंने एडिटर के रूप में काम किया है, कभी समय मिलेगा तो हम बात करेंगे। फोर्थ वन जो कि सावित्रीबाई के लीडरशिप में काम हुआ, आंदोलन हुआ, वो था ब्राह्मण महिलाओं को, विधवाओं को जब उनको फंसाया जाता था, शी गॉट प्रेग्नेंट, देन
शी हैव टू गेट रिडन ऑफ दैट, बच्चे की हत्या करनी पड़ती थी या खुदकुशी करनी पड़ती थी, सुसाइड। सो ऐसे ब्राह्मण महिलाओं को बचाने के लिए सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने अपने घर में जो पहला ऑर्फनेज चलाया, इट वाज फर्स्ट इंडियन ऑर्फनेज जो सावित्रीबाई के द्वारा शुरू किया गया। 35 ब्राह्मण महिलाओं का वहां आकर प्रसूति करना, डिलीवरी करना, और सावित्रीबाई ने खुद उनकी डिलीवरी की है, और उसमें से ही एक काशीबाई के बच्चे को गोद लिया, एडॉप्ट किया, जिसको अपना बेटा माना, जो डॉक्टर यशवंत आगे चलकर सावित्रीबाई और ज्योतिराव का नाम, उनका काम चलाते रहे। आगे की एक मूवमेंट है सावित्रीबाई के नेतृत्व में हुई, जो अकाल पड़ा था इन 1872 to 1877. 5 years famine was there, very dangerous famine in India. 1000 गरीब बच्चों को सावित्रीबाई ने खाना खिलाया, खुद खाना बनाती थी। 1000 बच्चों को खाना खिलाना और 5 साल तक उनकी परवरिश करना, ज्योतिराव कहते हैं इट वॉज हिस्टोरिक वर्क डन बाय सावित्रीबाई। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्राह्मण महिलाओं का मुंडन किया जाता था, वपन किया जाता था। सावित्रीबाई ने जो नाई हजाम लोग थे उनको इकट्ठा किया, उनके सामने स्पीच दिया और कहा कि ये काम आप नहीं करोगे, फोर्सफुली वपन नहीं करोगे। अगर लड़की चाहती है तो बात अलग है, लेकिन when she refuses, you should not use वस्त्रा। और आपको पता होगा कि 1000 नाई स्ट्राइक पर चले गए सावित्रीबाई के कहने पर, और पूरे भारतवर्ष में नहीं, लंदन टाइम्स तक ये न्यूज पब्लिश हुई कि किसी मांग के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए या किसी और डिमांड के लिए ये स्ट्राइक नहीं हुआ था। ये स्ट्राइक हुआ था महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, महिलाओं का वपन, ब्राह्मण महिलाओं का वपन नहीं करेंगे। और इसलिए सावित्रीबाई सिर्फ फॉलोअर नहीं है, सावित्रीबाई ज्योतिराव की लीडर भी थी, और ये खुद ज्योतिराव ने लिखा है। इस विषय को भी मैं आपके सामने रखना चाहता था। हालांकि फ्रेंड्स, ऐसे कई पहलू हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आज के सेशन में इसको खत्म करने से पहले फिर से कहना चाहूंगा, एज पर सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव, there are the 3 centers of the discrimination and exploitation. First is gender, महिलाओं के प्रति अन्याय, सेकेंड इज कास्ट सिस्टम, थर्ड इज क्लास, अमीर गरीब। और इन तीनों को खत्म करने के लिए जो लिटरेचर महात्मा ज्योतिराव फुले जी द्वारा लिखा गया, वो महात्मा फुले समग्र वाङ्मय में हमने प्रकाशित किया है, और काफी नए पेपर्स भी उसमें प्रकाशित किए हैं, जिसके बारे में अगले सेशन में भी हम बात करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सावित्रीबाई का भी कंपैरेटिव कलेक्टेड वर्क्स उनका भी अभी प्रकाशित हो गया है, और वो भी पढ़ते समय हमें पता चलता है कि शी वॉज पोएट। उनकी जो पोएट्री है, काव्य फुले, 1854 में पब्लिश हो चुकी थी, ज्योतिराव से भी पहले। उस सावित्रीबाई की साहित्य को हम जब देखते हैं, ज्योतिराव के साहित्य को जब देखते हैं, तो ऐसे कई नए पहलू हैं कि जिस पर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन खत्म करते हुए मैं इतना ही कहूंगा, पंचसूत्री प्रोग्राम was given by Savitribai and Jyotirao. First was removal of caste system, जाति नष्ट करने के लिए आंदोलन चलाना, जाति निर्मूलन का काम करना, और उसके लिए अंतरजातीय विवाह से लेकर कितने काम उन्होंने किए हैं। कई से तो हमें पता है, उनका अपना खुद का कुआं घर का उन्होंने कैसे ओपन किया था सबके लिए, स्कूल का निर्माण, और छूत अछूत को, भेदभाव को मिटाने का काम किस तरह से किया था। सो रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में, जाति प्रथा के
निर्मूलन के बारे में सावित्रीबाई और ज्योतिराव का सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र था, नॉलेज एंड स्किल्स फॉर एवरीबडी. सो सेकेंड, नॉलेज एंड स्किल्स, क्रिएशन ऑफ नॉलेज. इस दिशा में उन्होंने जो काम किया है हम लोग जानते हैं, लेकिन काफी ऐसी बातें हैं कि जिसके बारे में अभी भी बात करने की जरूरत है. थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर माय नॉलेज एंड रिसर्च, redistribution of resources, land, water, energy. Every resource is a resource from nature, but some people grabbed it. So Jyotirao and Savitribai started Satyashodak movement for redistribution of resources. Fourth one, very importantly, महिला और पुरुष के समता का आंदोलन, जेंडर इक्वालिटी. जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिला जब तक काम नहीं करेगी और कुछ बातों में तो महिला लीडरशिप नहीं करेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा. इसलिए मैंने कोटेशन पहले ही आपको पढ़ा के सुनाया था कि महिलाओं का स्कूल क्यों शुरू किया. अगर देश को आगे बढ़ना होगा तो महिलाओं के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है. और इसीलिए आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 20 जुलाई 1942 को साफ लफ्जों में कहते हैं कि महिलाओं के प्रगति के आधार पर ही देश की प्रगति हो सकती है, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे. मुझे लगता है कि जाति निर्मूलन, नॉलेज एंड स्किल फॉर एवरीबडी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, महिला और पुरुष, जेंडर इक्वालिटी, and fifth one, dialogue, debate, criticism and revolt. My dear friends, Jyotirao wrote a book named Gulamgiri, Slavery, and he devoted his book to American black people. When Mr. Barack Obama visited India, I myself presented this book to Barack Obama ji. मुझे आज भी याद है कि बराक ओबामा जी के आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने जब उसे पढ़ा, ब्लैक पीपल के संघर्ष में 1873 में पूना में, महाराष्ट्र में, इंडिया में महात्मा ज्योतिराव फुले उनके सपोर्ट में खड़े हैं, ये जानकर उन्हें बड़ी खुशी हुई थी. और इसलिए उन्होंने खत लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से सैल्यूट महात्मा ज्योतिराव फुले. दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि जब नेल्सन मंडेला जी ने भारत दौरा किया था, तब भी हमने उन्हें ये किताब गिफ्ट में दी थी. तब भी मंडेला साहब ने इन्हीं शब्दों के साथ महात्मा फुले जी को सैल्यूट किया था. सो मुझे लगता है कि महात्मा फुले वॉज नॉट ओनली मराठी राइटर और इंडियन राइटर, ही वॉज ट्रू ग्लोबल राइटर. सच में ग्लोबल थिंकिंग करने वाले फुले जी के बारे में, उनके कविताओं के बारे में, उनके फर्स्ट प्ले तृतीय रत्न के बारे में काफी बातें हो सकती है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं फिर एक बार ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. थैंक्स टू एवरीबॉडी. जय भीम, जय भारत, जय जगत. नमो बुद्धाय. Sadhu, sadhu, Professor Narke sir. Thank you very much. Your lecture has been really extremely insightful with new insights that we all got to know, especially the relationship that the Phule couple had with Ramji Ambedkar. That is definitely a very revolutionary kind of idea itself, that these two Guru Shishya, Babasaheb and Mahatma Phule, have been related in their pursuit. They were in close connection somehow, and the nature really worked out in that way to make it happen. So very grateful for all the insights that you shared. Panchasutri Karyakram that you talked about. You talked about Hunter Commission's presentation by the Phule couple and their opposition to the so-called filtration theory, but their proposal was to
education has to start from below. It has to start from the from bottom. It just goes on to show how much advanced this couple was of their time. They are the true humanitarians of their time, and the very deserving couple to be a Rashtrapita and Rashtramata for this nation. So with that, I would open up a session for question and answer. I see 3 hands up in there. I would request, please be precise with your question, be short so that we can accommodate a lot of questions in here. I know this is going to be a 2-part series. Narke sir is also scheduled to come one more week. We are working to get that timing done. So whether it would be next week or a week after, we are still working on that. But we will try to get as many questions as possible today. If we are not able to get all questions today, then we will also have an opportunity for the next time. But I'm sure next time again there would be equal questions. So please be very short on your question, be to the point, whatever sir talked about on today's session. Please go ahead. So I will invite Rayadas Manthena today to go with your question. Please go ahead. Thank you, Pankaj. Thank you for, it was a beautiful lecture, and I joined a little later, but I got good out of the session. So I have 2-part question, Professor Sir. If you answer here, fine. You can send an email. I will give my email. So the first question is how in last few years, you see the tremendous explosion of celebration, the awareness about Ambedkar. Ambedkar anniversary, Phule anniversary, Rambai. So how to convert these ritual Ambedkar, so-called Ambedkars, to Ambedkar's rights to action-oriented Ambedkar rights, instead of just simply celebrating, how you can actually get them into do something good for the communities. That's first question. Second question, before I ask this question, I'm going to request audience not to misunderstand my question. And I absolutely respect you all. I love you all. But I have to ask this question. I'm a messenger. I'm bringing this question. How to decouple Buddhism from Ambedkar? When we teach Ambedkarism, respect Buddhism itself. Okay, it is one of the best religion. I know one of my son is exploring to go into Buddhism. When we teach about Ambedkarism, Ambedkar accomplishment, how to project him. Because I'll give an example, okay? Very simple example. And if you take a Christians, they say there is only one God. Out of 10 commandments, first commandment says, I'm only the God. If you worship anybody, you're a sinner. So basically, how to balance these teachings without not hurting or without not deflecting, without distancing other religions? That's second question, sir. Thank you. Thank you, sir. I think we must speak about it, but मुझे लगता है कि आगे के भी क्वेश्चन रेज करने दीजिए, सबका एक साथ जवाब देना ज्यादा अच्छा रहेगा. इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी. मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ में आगे चलते हैं. थैंक यू. ठीक है सर. Yeah. We will ask Sanjay Dada. Please go ahead, Sanjay. Okay. Thank you, Pankaj. And Devim Narke Saheb, and thank you very much for giving such an insightful speech. We came to know about many new things from your this lecture. I have a question about our Satyashodak Samaj and the marriage ceremony, what they have initiated. Such a revolutionary concept, considering that they are asking to give 20% of whatever the marriage expenses towards the education institute and all this, or asking the Mahar girl to preside over the function or start the function. So at that time, how much percentage of the families from the Maharashtra were following this particular marriage system, or whether it was just limited to one particular region of Pune or around that area, and why that particular tradition, or when that tradition get lost, so that again we switch back to the same the Brahmin
marriage system? Yes, sir. I will definitely answer this. But I would like to get third question also. Yes, sir. Right. Yeah. Professor Jagannath, please go ahead with your question, sir. Professor Narke, extremely thankful. Such a great insight. My question is very simple. Infodemic is crippling Ambedkar vision in India. What is the way out? Infodemic, I want to explain, is misinformation and disinformation. Infodemic means misinformation and disinformation. My question is very simple. If Mahatma Phule and Angel Savitri Phule and Jai Bhim could pulsate with so much of a liberation trend, why is that we as individuals are yet to find a solution ourselves? I will conclude by saying that I am using my remote to mute all the advertisements which I watch in the radio and television, whatever channels I see. That is to say, we have to exercise our weapon, it's a non-violent direct action we can do. Each one, just take the remote button of the, it could be a radio, it could be TV. I want to just say, okay, I want to conclude by saying that 1987, Gavarikar, when he was the Secretary, Department of Science and Technology, he was instrumental in making Bharat Janvignan Jatha. 6 crore rupees were spent for 29 popular science organizations to come together. And we had 25,000 kilometers of People Science March, with so much of a rich conscience evolving in ANA, Boston Study Group, and 50 plus, I feel like being happy and shout. So much of brilliant expertise is there in this JBM community. Why is that? Why is that we are not, able to come out with some information? See, as you are doing now, the one presentation you have made now, to me, it should come in all the languages. The summary, like waves, it should reach the people who are unreached. Why it is not done? This is my simple question. Thank you very much, Sanjay. Thank you. Thank you, sir. Sir, we have 2 more questions, so let me get all of those. Okay. Santosh, please go ahead with your question. Santosh Gopnarayan. Yeah, Jai Bhim, Narke sir, and all honorable members. It's always golden opportunity to listen Hari Narke sir. I attended Narke sir today's session, Purogrami Brahman and Sanatani Brahman, Pune, and Bhai Gandhi. My question, we are celebrating Dr. Ambedkar Jayanti, Phule Shahu Ambedkar Jayanti across globe. And the Bhidewada, which is beside Dagdushet Halwai, most of our SC, ST, OBCs are visiting Dagdushet Halwai, Ganpati, and still our Bhidewada is far behind. तो मेरा सवाल है कि भिड़ेवाड़ा का एक अपना बहुत बड़ा एक हेरिटेज होना चाहिए, because it's inspiration for all of us. तो अभी हम 75 साल पूरे होने वाले हैं इंडिया में, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए. तो अभी भी वो भिड़ेवाड़ा इस हालत में क्यों है? हम पूरे वर्ल्ड यानी जितने भी हमारे कंट्रीज में अम्बेडकराइट्स, फुले शाह अम्बेडकर बसते हैं, क्या उन्होंने कुछ गवर्नमेंट को आवेदन देना चाहिए? बहुत सारे हमारे सीनियर ऑफिसर्स, सोशल ऑर्गेनाइजर्स आर वर्किंग विद गवर्नमेंट. क्या उनका कुछ ऐसा सेपरेट ऐसा हमें कुछ करना चाहिए कि वो भिड़ेवाड़ा को एक बड़ा एक हमारा एक हेरिटेज के रूप में हमारे आने वाले पीढ़ी को देखना चाहिए? इस प्रकार का हम सर क्या काम कर सकते हैं इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया? यस सर. थैंक यू सर.
Yeah, thank you, Santosh. And the next one is coming from Chatak. Chatak, please go ahead. Chatak? Hello, can you? Yes, yeah, please Thank go you, ahead. Pankaj. Yeah. So, Jai Bhim Narke sir, this was Jai Bhim. a very great, insightful talk. So I will go to directly my question to save time. So आपने शुरुआत में थोड़ा टच किया था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज. आपने ये बोला कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने फार्मिंग एग्रीकल्चर को एज ए इंडस्ट्री घोषित करना चाहिए, ये रेकमेंड किया था. However, that did not happen. What were the reason it did not happen, and why it's still not happening? Why the elected governments are not doing that? आप उसमें थोड़ा आपके विचार रखिए. थैंक यू सर. पंकज जी, कैन आई स्टार्ट? सर, एक और क्वेश्चन है. मैं अपनी तरफ से भी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ प्लीज. कि ये जो फुले कपल है जी, they are the truly deserving Rashtrapita Rashtramata title, honorific, that they should carry for the nation for the work that they have done. They not only they were revolutionary in field of education, they revolutionized the whole system that we see a system of operation which against which they stand. So what should be done in that regard? That would be the question that I would have. जी, thank you. And I don't see any more questions or raise hand now. So yes, sir, please go ahead with Thank you. your collected answers. I'll start from Bhidewada. Bhidewada is a private property. Mr. Bhide sold it to some person and then अलग अलग लोगों को उसे बेचा गया, और अभी nowadays it is a property of some bank and some rental persons are living there. Some offices and merchants also are there. So it is a very important property for them. And जैसे कि आपने कहा कि सामने ही दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर है, और आपको पता है कि that is the richest temple of not only Pune but I think Maharashtra also. So उसके सामने की दुकानें, वहाँ होटल्स और वहाँ के बाकी लोग जो है, बैंक है, उनके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत अहम है. लेकिन अपने मूवमेंट के द्वारा उसको नेशनल मॉन्यूमेंट बनाए जाने के लिए, राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने के लिए कई सालों से आंदोलन चलाया गया. गवर्नमेंट को उसके लिए निवेदन दिए गए और गवर्नमेंट ने माना कि हम उसको नेशनल मॉन्यूमेंट बनाएंगे. लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो, वहाँ की बैंक और बाकी सब लोग जो है, वहाँ के मर्चेंट्स एंड जो वहाँ रहते हैं टेनेंट्स, दे वेंट टू बॉम्बे हाई कोर्ट, और 20 साल से इट इज ए सब जुडिस मैटर, कोर्ट मैटर. और कोर्ट में हमने सभी एविडेंसेस, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और उनके साथियों ने जो वहां स्कूल चलाया था, उसके बारे में आर्काइवल मटेरियल सबमिट किया है. और मुझे लगता है कि कोर्ट इज कन्विंस्ड, बट उन्होंने अपना वर्डिक्ट डिक्लेयर नहीं किया है. कई सालों से उसे पेंडिंग रखा हुआ है. अब देखिए, ब्रिटिश रिकॉर्ड में काफी ऐसी बातें हैं जो कि आगे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनी है, और उन सबको हमने रिसर्च करके कोर्ट के सामने भी रखा है और पब्लिश भी किया है. तो अभी अभी 2 बहुत अच्छे परिणाम आए हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 2 मीटिंग्स अभी अभी बुलाई गई, और उन दोनों मीटिंग में टेनेंट्स, बैंक और वहाँ के जो मर्चेंट्स, जो भी लोग हैं, उनको बुलाया गया था और उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा. और उन्होंने इस काम में हमें कोऑपरेट करना चाहिए, इसलिए उनको कन्विंस किया गया. और अभी दे विल विड्रॉ देयर कोर्ट केस, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में, एटलीस्ट 2-3 महीने में, हम इस नेशनल मॉन्यूमेंट को बनाने का काम शुरू करेंगे.
और काफी दिनों का ये हमारा मसला था और जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी एक बहुत अच्छा हल निकल के आया है और सब लोगों ने ये माना है कि हम एक साथ बैठकर कॉम्पेंसेशन का जो भी मोडस ऑपरेंडी होगा उसको तैयार करके वो केस विड्रॉ करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भिलवाड़ा, जो कि भारत का पहला ऐसा स्मारक होगा कि जहां दलित, बहुजन, हाईकास्ट सभी लोगों ने एक साथ काम किया है और नॉलेज एंड स्किल्स के लिए काम किया है। रेवोल्यूशन, एजुकेशनल रेवोल्यूशन का वो सेंटर रहा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महात्मा फुले वाड़ा की स्थिति भी बहुत खराब थी, आप जानते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि 30 साल पहले हम लोगों ने इस दिशा में जो काम करने की कोशिश की और छगन भुजबल जी ने हमारा साथ दिया और वो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के हाथों से देश का एक नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया। सेकेंड, वी हैव स्टार्टेड फॉर सावित्रीबाईज प्लेस नायगांव, जहां उनका जन्म हुआ था। उसकी भी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 20 साल पहले उसके बारे में भी हमने काम शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आज वहां पर एक बहुत अच्छा राष्ट्रीय स्मारक बना है, शिल्प सृष्टि भी बनी है और पूरे गांव के विकास की दिशा में हम जा रहे हैं। तीसरा जो है ये भिलेवाड़ा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए हम एक गुड न्यूज दे पाएंगे। दूसरा, सत्यशोधक शादियों के बारे में दोस्तों ने जो सवाल उठाया था, मैं 119 कोर्ट केसेस के पेपर्स आज तक मैंने कलेक्ट किए हैं, जो कि सत्यशोधक शादी के बाद ब्राह्मण प्रिस्ट कोर्ट में जाते थे और वो कोर्ट से कहते थे कि इट इज आवर रिलीजियस राइट, हमको बुलाकर ही शादी हो सकती है, विदाउट ब्राह्मण मैरिज कांट बी परफॉर्म, इट इज इलीगल। और हर बार ये लड़ाई बहुत जोर शोर से होती थी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव के पहले शादी, सत्यशोधक शादी में भी पुलिस को बुलाना पड़ा था और तब से जो कोर्ट केसेस हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा, लेकिन अभी अभी पुणे कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ पुणे इनवाइटेड मी और मैंने वहां पर कोर्ट मैटर्स में क्या रिजल्ट्स इसके बारे में आए थे, केसेस का क्या हुआ था, उसके कई पेपर्स रखे थे। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में मानगांव कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि लॉयर इज ए प्रोफेशन, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए प्रोफेशन, डॉक्टर इज ए प्रोफेशन, वैसे ही प्रिस्ट एक प्रोफेशन है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम होनी चाहिए उसके लिए और सभी लोगों के लिए वो खुली होनी चाहिए और उसमें से जो भी पास होगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्ट बनाया जाएगा और इट विल बी ए लाइसेंस होल्डर प्रिस्ट। 100 साल हो गए लेकिन आज भी इट इज ए 100% रिजर्व फॉर सम पीपल, पर्टिकुलरली वन कास्ट। बाकी रिजर्वेशन के खिलाफ बात करने वाले लोग ये रिलीजियस रिजर्वेशन जो है इसके खिलाफ बात नहीं करते हैं। आज भी आपको पता होगा कि पुणे में और महाराष्ट्र में आजकल ये प्रेस्टिप का मामला उठा है। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सत्यशोधक समाज ने इस दिशा में जो लड़ाइयाँ की है उसका डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सांगली यानी कि वेस्टर्न महाराष्ट्र, देन कोकण, ठाणे, मुंबई, ऑल्सो विदर्भ, बेरार, सीपीएन बेरार, particularly बुल्ढाना, चिखली, चंद्रपुर, नागपुर एंड यवतमाल, अमरावती, यहाँ से भी सत्यशोधक शादियों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और सत्यशोधक मूवमेंट के बारे में काफी ऐसी पॉजिटिव चीजें मिली है जिसका डिटेल्स में यहाँ जिक्र नहीं कर सकूंगा। लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई मूवमेंट थी
और महात्मा फूले के जाने के बाद भी ये चल रही थी। खास करके इसके बारे में जो लड़ाइयाँ हुई है और बॉम्बे प्रोविंस में विधानसभा में इसके बारे में कानून बनाने के लिए 1920 से 1926 तक जो काम हुआ है उसके बारे में कभी समय मिलेगा तो हम बात करेंगे। लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन चलता रहा। लेकिन बाद में ये हुआ कि सत्यशोधक मूवमेंट कांग्रेस में विलीन हो गई और बाद में पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, राजकीय स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया आगे आने वाले दिनों में। और सामाजिक मूवमेंट जो कि बाबा साहब चला रहे थे, वो जिस तरह से बहुजन समाज की तरफ से उसे सहयोग मिलना था, इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि बाबा साहब के नेतृत्व को ओबीसी, खास करके अदर बैकवर्ड क्लासेस, घुमंतु जातियां और हमारे समाज के खास करके आर्टिजन्स एंड फार्मर्स समझ नहीं पाए और उसके कारण काफी नुकसान इस मूवमेंट का हुआ है। लेकिन सत्यशोधक शादियों की मूवमेंट आज भी चल रही है, कम मात्रा में है, लेकिन आज भी ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में सत्यशोधक शादियां होती है, हमें लोग बुलाते हैं। और एक्चुअली इसको जो प्रेस्टीज मिलना चाहिए, ये मेन स्ट्रीम होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा, लिटरेसी बढ़ेगी और खास करके फुले शाहू अम्बेडकराइट मूवमेंट बढ़ेगी, ये काम भी आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि बाकी जो प्रैक्टिकल एजेंडा, खास करके इन विचारों को मूवमेंट में कन्वर्ट करने के बारे में जो सवाल साथियों ने पूछे थे, उसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा। लेकिन स्मॉल होल्डिंग्स के बारे में जो सवाल उठाया गया था, तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैंने जानबूझकर स्मॉल होल्डिंग का सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके डिटेल्स के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट सेशन मेरा शुरू होगा वो स्मॉल होल्डिंग से होगा, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से 100 साल पहले किसानी की बात की है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फुले एंड अम्बेडकर का वहां रिश्ता है, क्योंकि महात्मा फुले रोट ए बुक, शेतकऱ्याचा सूड, किसान का कोड़ा, कल्टिवेटर्स विथ कॉड, इन 1880s। एंड आफ्टर दैट 40 years के बाद में बाबा साहब ने ये किताब लिखी है। और इन दोनों किताबों में महात्मा फुले एंड बाबा साहब के जो रेवोल्यूशनरी बातें हैं, जो कि आज भी 2022 में भी किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट्स है। और हम लोगों को, खास करके फुले अम्बेडकराइट लोग जो है हम, मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को, महात्मा फुले को बहुजन समाज के सामने लेके जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू किसान के कल्याण के बारे में, किसानों के डिमांड्स के बारे में, किसानों के वेलफेयर के बारे में जो बातें, जो विजन बाबा साहब ने, महात्मा फुले जी ने शेयर किया है, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। इसलिए नेक्स्ट सेशन में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हमारे नेशनल एंथम में एक शब्द आता है, भारत भाग्य विधाता। ये भारत भाग्य विधाता के रूप में, जैसे कि मेश्राम सर ने कहा था कि राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता के रूप में महात्मा फुले सावित्रीबाई को देखा जाना चाहिए, लेकिन आज भी हम उस दिशा में हमें काम करना होगा और भी काम करना होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि महात्मा फुले का पूरा लिटरेचर मराठी में ही था। 1990 में हिज डेथ सेंचुरी हमने ये कोशिश की कि उसका इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन हो, और मुझे बड़ी खुशी है कि 13 भारतीय भाषाओं में हमने इसे अभी ट्रांसलेट किया है। आवर वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज इन प्रोग्रेस। वी आर गोइंग टू पब्लिश इट इनटू 22 इंडियन लैंग्वेजेस। और मुझे और भी एक खुशी है कि सावित्रीबाई का फर्स्ट इंग्लिश बायोग्राफी अभी अभी मैंने प्रकाशित किया है,
मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को भी उसे पढ़ना चाहिए, और खास करके इंग्लिश में आने के बाद अन्य भाषाओं में भी वो जाएगा। पर्टिकुलरली इन स्पेनिश सावित्रीबाई का पूरा लिटरेचर अभी ट्रांसलेट हो रहा है और आने वाले दिनों में प्रकाशित होगा। और इंग्लिश में सावित्रीबाई फुले एंड महात्मा फुले का बायोग्राफी एंड कलेक्टिव लिटरेचर प्रकाशित होने के बाद मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता के उनके योगदान के बारे में लोग जरूर सोचेंगे। मुझे तो लगता है कि फुले अंबेडकर आर द भारत भाग्य विधाता। सच मायने में अगर भारत के भाग्य को बदलने का, भाग्य का मतलब अलग ना ले, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में जो उन्होंने एक एजेंडा हमें दिया, ब्लूप्रिंट दिया, उसके बारे में मुझे लगता है जैसे जैसे लोग जानेंगे, इसमें तो सबसे बड़ा काम हमको करना होगा, हम आप सब लोगों को करना होगा कि हमको सिर्फ बाबा साहब हमारे हैं, फुले जी हमारे हैं, ऐसा ना कहते हुए हम सबके हैं, और हम सबके हैं के बताते हुए एविडेंसेस, उनके काम और उनके विचारों से लोगों को अवगत करना। और इसलिए मैं इस सेशन को खत्म करते हुए, फुले जी ने नेशन कब बनेगा इसका जो ब्लूप्रिंट दिया था, आई विल कंक्लूड विद दैट। ही सेड नेशन, NATION, भारत को अगर बनना होगा तो देयर आर 4 कंडीशंस। फर्स्ट, एजुकेशन, knowledge and skill for every Indian, particularly SC, ST, OBC, महिलाएं सभी समाज की, माइनॉरिटीज, इन सबको एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेकर। ये लोग सिर्फ पढ़ेंगे इतना काफी नहीं है, उनको अपनी सोच इंडिपेंडेंट बनानी होगी। थर्ड वन, टू एजुकेट द मासेस, टू अवेयर द मासेस, टू ऑर्गेनाइज द मासेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन। एंड फोर्थ वन, इंटीग्रेशन। और कास्ट सिस्टम इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है, इसलिए कास्ट सिस्टम को हटाना होगा, तब जाके भारत नेशन बनेगा। मुझे लगता है कि एज ए नेशन बिल्डर के रूप में, राष्ट्रमाता और राष्ट्रपिता के रूप में सावित्रीबाई और ज्योतिराव को, बाबा साहब को हम लोगों के सामने जब रखते हैं तो उनके ऐसे कई पहलू है, देयर आर मेनी न्यूअर इनसाइट्स जो कि हमको शेयर करने हैं लोगों के साथ। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन दिनों 2 साल के पैंडेमिक के बाद बहुत जोर से जयंती 11 अप्रैल, 11 अप्रैल महात्मा फुले एंड 14 बाबा साहब, और आने वाले 15-16 को बुद्ध जयंती मई में, तो ये पूरा महीना इस दिशा में काम हो रहा है। और मैं फिर एक बार ऑर्गेनाइजर्स का, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, आप सभी को थैंक्स कहता हूं। और मुझे लगता है कि यहाँ टाइम को देखते हुए रुकना चाहिए, इसलिए अगेन जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय USA, जय जगत। Thank you very much, sir. Thank you very much for your time today. It was really a very great, insightful for all of us to hear about Phule, the couple and their struggle and their movement, and how hard-hitting these changes were, how revolutionary these changes were. Is a pleasure to see that and hear that from you. So we thank you for your session today, sir. And like I said, this would be a 2-part series. We are still working with Professor Narke to get the second lecture, whether it would be on 1st or on 8th. We are still working on that one. But it will be a 2-part series, and the professor has already jotted down his second part of series. He hinted what topics he's going to cover on it, but they definitely please do join us for that one. We just wanted to kind of get our session towards conclusion now.
I don't see any announcements to be done or anything like that. Taking the session towards for the vote of thanks, I wanted to first start with Bante Silvangso for his Dhammadana and the Dhamma talk that he gave us today. And then I also wanted to thank Kranti Tai for hosting the kids session, and Anagat for reading us a very nice story, a very insightful story. And lastly, but not the least, Professor Narke sir for his time. He's been with us for the entire session, and he also supported question and answer and gave us a very insightful talk. And we will have it. We will have him again for the next session. So, like I said, we are still working on that date, but we will have him again for the next session. That is for sure. Thank you. So with that, I just wanted to thank all the participants today and for your questions and being there with us, and wishing again this month, we are ending this month with today's session of Phule Ambedkar